کہتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا نہ خود سکون سے رہ پاتا ہے اور نہ دوسروں کی خوشی برداشت کر پاتا ہے۔ اریبہ کی زندگی بھی ایسے ہی زہریلے حسد کا شکار بن گئی تھی۔ اریبہ کے والد ارشد صاحب نہایت نرم دل اور صلح پسند انسان تھے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی سکینہ۔ رشتے کے لحاظ سے وہ خاندان میں سب سے بڑی تھی، مگر ان کے مزاج میں نہ شفقت تھی نہ ہی بڑوں جیسا وقار۔ نہ جانے کہ وہ شروع سے ہی ارشد صاحب کے گھر والوں سے دل میں عجیب سی دشمنی رکھتی تھی۔ گھر کی معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر لڑائی میں بدل دینا ان کی عادت تھی۔ وہ ہر محفل میں فساد کھڑا کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی، لیکن ارشد صاحب اور ان کی اہلیہ ہمیشہ خاموش رہتے، اس لیے کہ وہ خاندان کی بڑی تھی اور رشتے کا احترام ضروری تھا۔ سکینہ کی ایک ہی بیٹی تھی فوزیہ، اور فوزیہ اپنی ماں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ عمر میں اریبہ سے کافی بڑی تھی، مگر ہر کسی کے سامنے معصوم بننے کا ایسا ڈرامہ کرتی جیسے وہ خود ابھی بچی ہو۔ اس کی باتوں میں مٹھاس ضرور ہوتی، مگر اس مٹھاس کے پیچھے حسد اور چلاکی چھپی ہوتی تھی۔ ماں بیٹی دونوں کو شاید اریبہ کی ہر خوشی سے مسئلہ تھا، کبھی اس کے کپڑوں پر طنز، کبھی اس کی تعریف برداشت نہ کرنا اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے شرمندہ کرنا۔ یہ سب معمول بن چکا تھا۔ ایک بار اریبہ اپنے والدین کے ساتھ دلی میں اپنے ماموں کے گھر چھٹیاں گزارنے گئی۔ وہاں سب بہت خوش تھے، اس وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ انہی دنوں کہیں سے خبر ملی کہ فوزیہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ارشد صاحب کو یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، کیونکہ ان کی اپنی بہن نے اتنی اہم بات ان سے چھپائی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو اریبہ اور اس کا خاندان واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن اگلے ہی دن سکینہ اپنی بیٹی فوزیہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر آدم کی۔ وہ صرف رشتے کی خبر دینے نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے انداز، اپنی باتوں اور مصنوعی شان و شوکت سے سب کو احساس دلانے آئی تھی کہ ان کی بیٹی بہت خاص ہو چکی ہے۔ وہ آتے ہی بڑے غرور سے کہنے لگی، میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی شان کے مطابق ہوا ہے، لڑکا باہر گیا ہوا ہے اور خاندان بھی بہت امیر ہے۔ انہوں نے تو فوزیہ کو دیکھتے ہی ہاں کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی تعریفوں کے پل باندھ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ سکینہ کے جانے کے بعد ابا مسکرا کر بولے، ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا، اتوار کو ہمیں اقبال صاحب کے گھر پارٹی میں جانا ہے۔ ان کا بیٹا عدنان باہر سے پڑھ کر واپس آ رہا ہے، اسی خوشی میں انہوں نے سب کو بلایا ہے۔ اقبال انکل اریبہ کے ابا کے کافی پرانے اور پکے دوست تھے، مگر اریبہ کی ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اتوار کا دن آیا تو سب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اریبہ نے بھی الماری کھول کر کپڑے دیکھنے شروع کیے کہ آج کیا پہنے گی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد اس کی نظر اپنے سب سے پسندیدہ بلیک سوٹ پر پڑی۔ جب وہ اچھی طرح تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کی چھوٹی بہن نیدا اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، ماشاءاللہ تم تو اس بلیک سوٹ میں کمال لگ رہی ہو۔ اریبہ نے شرماتے ہوئے اسے ڈانٹا، بس چپ کرو تم، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوتا، چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ پارٹی میں پہنچ کر ان کی پہلی اقبال انکل اور ان کے خاندان والوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب بہت خوش اخلاق اور اچھے مزاج کے لوگ تھے۔ خاندان میں اقبال انکل، ان کی بیگم، چھوٹا بیٹا جواد جو ابھی پڑھائی کر رہا تھا اور بڑا بیٹا عدنان شامل تھے، جن کے آنے کی خوشی میں یہ شاندار پارٹی رکھی گئی تھی۔ پارٹی بہت زبردست تھی کیونکہ اقبال انکل کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اقبال انکل کا کنسٹرکشن کا کاروبار کافی بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس دن پارٹی میں سب نے محسوس کیا اور خود اریبہ نے بھی دیکھا کہ عدنان کا جھکاؤ اس کی طرف زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اس دن پارٹی میں سب کو بہت مزہ آیا۔ کچھ دنوں بعد اریبہ کے امتحان بھی ختم ہو گئے تو اس نے اور اس کی دوستوں نے وقت گزارنے کے لیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے مختلف کورسز کرنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں نا کہ جو بھی سیکھا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اور انہی کورسز کی وجہ سے آگے چل کر اریبہ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ اریبہ روز صبح سینٹر جاتی اور شام تک واپس آ جاتی۔ ایک دن جب وہ تھکی ہوئی گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر پر اقبال انکل اور ان کی بیگم آئی ہوئی تھی۔ اریبہ اپنا سامان رکھ کر ان کے پاس چلی گئی اور سب کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو ابا نے اریبہ کو ایک ایسی خوشخبری سنائی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اصل میں اقبال انکل اور ان کی بیگم اریبہ کے لیے اپنے بڑے بیٹے عدنان کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ابو اور اقبال انکل نے بغیر کسی دیر کے یہ رشتہ طے کر لیا اور اپنی برسوں پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ پورے خاندان اور دوستوں میں اس خوشی کے موقع پر مٹھائیاں بھیجی گئیں۔ اگلے ہی دن سکینہ پھوپھو دوڑتی ہوئی ان کے گھر آئی اور آتے ہی انہوں نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ میری بیٹی فوزیہ کی خوشیاں اس گھر میں کسی کو ہضم نہیں ہوں گی۔ ابو نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور بولے، آپا جان آخر بات کیا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟
सकीना तंजिया हंसी और बोली, इतने मासूम ना बनो, मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाकर मुझसे पूछते हो क्या बात है। अब तो अब्बू का गुस्सा भी बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप साफ साफ बताएं क्या माजरा है। सकीना ने अपना असल रंग दिखाते हुए कहा कि जो रिश्ता इकबाल साहिब के घर में मेरी बेटी फौजिया से तय हो चुका था, तुमने इसे तोड़कर अपनी बेटी अरीबा के रिश्ता वहाँ तय कर दिया। मैं रिश्ता करवाती हूँ, इकबाल साहिब के घर में आना जाना है। इनकी बेगम ने खुद मुझसे कहा था कि अगर अदनान के लिए कोई अच्छी लड़की हुई तो बताना। मैंने अपनी बेटी फौजिया की तस्वीर इन्हें दी थी, मगर अदनान को तस्वीर देखने का मौका ही ना मिला। पार्टी में अदनान को अरीबा पसंद आ गई और वो तस्वीर वैसी की वैसी वापस आ गई। अब्बू ने सकीना को साफ कह दिया कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं। इकबाल अंकल और इनके ख़ानदान को अरीबा पसंद आई थी। सकीना और फौजिया वहाँ से गुस्से में निकल गई, मगर इनका हसद एक खौफनाक नफरत में बदल चुका था। खैर चंद दिनों में अरीबा और अदनान की धूमधाम से मंगनी हो गई। सब बहुत खुश थे, मगर इसी दौरान अदनान के बिजनेस के सिलसिले में एक बड़ा मौका आया, जिसके लिए इसे 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ गया। दोनों खानदानों ने मिल बैठकर फैसला किया कि अब शादी 2 साल बाद ही होगी। अदनान इजाज़त लेकर चला गया और अरीबा इसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी, मगर अरीबा और इसके ख़ानदान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 साल का वक्त सकीना फुफो और फौजिया के लिए एक सुनहरी मौका बन जाएगा। दोनों माँ बेटी अरीबा की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने पर तुले हुए थे। इनकी हसद इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने अरीबा पर ऐसी ऐसी परेशानी और दुख देने शुरू कर दिए जिनकी कोई हद ना थी। सकीना ने अरीबा की खूबसूरती, इसकी अक्लमंदी और इसकी खुशियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही खौफनाक साजिश पर काम करना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में अरीबा की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई कि पूरा ख़ानदान परेशान हो गया। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसके चेहरे की चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अरशद साहब ने अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाए, मगर अजीब बात यह थी कि जब भी कोई रिपोर्ट आती सब कुछ नॉर्मल होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरीबा को कोई बीमारी नहीं थी, मगर इसकी तबीयत वैसी की वैसी खराब रहती थी। घर वाले बहुत सारी दवाइयाँ देते, लेकिन इन दवाइयों का अरीबा पर कोई असर नहीं होता था। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कभी कभी तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती कि वो होशो हवास खो बैठती। अचानक इसे तेज़ बुखार चढ़ जाता और लगता जैसे इसके जिस्म में जान ही ख़त्म हो गई हो। वो पूरा दिन कमरे में अंधेरा करके लेटी रहती और अजीबोगरीब ख्वाब देखकर अचानक जाग जाती। अरशद साहिब और इनकी बेगम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगर तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो इनकी फूल जैसी बेटी अंदर ही अंदर क्यों सिसक रही है। अरीबा की इस हालत पर पूरा घर रो रहा था, जबकि दूसरी तरफ सकीना फुफो और फौजिया ने देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। इन्हें पता था कि यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि इनकी वो काली साजिशें और नफसियाती जुल्मतें थीं, वो जो पिछले कई महीनों से अरीबा पर ढा रही थी। जब अरीबा की नानी को यह खबर मिली कि इनकी नवासी इतने दिनों से इतनी शदीद बीमार हैं, तो इनका दिल टूट गया। वो काफ़ी दिनों से बस ये सुन रही थी, लेकिन दूरी की वजह से और अपने बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से अभी तक अरीबा के घर नहीं आ पाई थी। मगर जब इन्हें पता चला कि बात सिर्फ आम बीमारियों की नहीं, बल्कि अरीबा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी हैं, जैसे अकेले में बड़बड़ाना, अचानक डर जाना और रिपोर्ट नॉर्मल आना, लेकिन इसके बावजूद अरीबा का ठीक ना होना, इनके बुजुर्ग जहन ने किसी गहरी साजिश का अंदाज़ा लगा लिया था। नानी पुराने ज़माने की थी और इन्हें समझ आ गई थी कि ये बीमारियां जिस्मानी नहीं, बल्कि किसी बुरी नज़र या काले साए का नतीजा है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब दूर बैठकर ये सब नहीं देखेंगी। उन्होंने अरशद साहब को साफ साफ कह दिया कि वो अरीबा को लेकर कहीं भी नहीं जाएंगे, बल्कि वो तमाम तकलीफ़ें सहकर अपनी नवासी के पास जाएंगी। नानी को अच्छी तरह मालूम था कि ख़ानदान में किसका दिल साफ है और कौन अंदर ही अंदर ये सब कुछ कर रहा है। जैसे कौन बच्चे से हसद करता है। इनका अनाप सकीना और फौजिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला था। नानी जब से घर आई थी, उन्होंने पूरे घर का माहौल ही बदल कर रख दिया था। इन्हें समझ आ गया था कि अरीबा पर किसी ने गहरा काला जादू किया है, इसलिए उन्होंने दवा के साथ साथ रूहानी इलाज शुरू कर दिया। नानी तकरीबन 40 दिन तक रोज़ाना बगैर नागा तहज्जुद के वक्त उठती और पूरी अकीदत और ध्यान से सूरत बकरा की तिलावत करती। तिलावत मुकम्मल करने के बाद वो इस पाक कलाम का दम की हवा पानी रोज़ाना बिला नागा अरीबा को पिलाती थी। इस रूहानी इलाज के साथ साथ नानी ने अरीबा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो खुद अरीबा के कमरे में इसके आसपास की सफाई का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह जानती थी जहाँ पाकीज़गी और सफाई होती है वहाँ बुरी ताकतें ठहर नहीं पाती। नानी ने घर में बाकी लोगों पर भी सख्ती कर दी थी। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में खानदान वालों से कह दिया था कि जितने भी हसद वाले लोग हैं, इन्हें अरीबा से बिल्कुल दूर रखा जाए, इनका साया भी अरीबा पर ना पड़ने दिया जाए। नानी का इशारा सीधा फौजिया और सकीना की तरफ था। उन दोनों माँ बेटी के कमरे में आने पर पाबंदी लग चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सूरत बकरा की
बरकत और नानी की खालिश देखभाल का असर दिखाई देने लगा। अरीबा के जिस्म पर जो भारीपन और अंधेरा रहता था वो कम होने लगा। इसकी तबीयत में थोड़ी बहुत बेहतरी आने लगी। जब सकीना को पता चला कि इनका काला जादू टूट रहा है और अरीबा सेहतमंद हो रही है तो इनके सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने अरीबा की खुशियों को बर्बाद करने के लिए एक और नया घिनौना मंसूबा बनाया। सकीना सीधा अदनान की अम्मी अरीबा की होने वाली सास के पास जा पहुंची। कान में सरगोशी करते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि अरीबा पर कोई खौफनाक जिन्नात का साया है। इतने दिनों से वो बीमार है और इसके सारे अमाल अजीब हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, कल अगर वो शादी के बाद तुम्हारे घर आ गई, फिर दोबारा बीमार हो गई या इस पर जिन्नात का असर हुआ तो तुम्हारा बेटा क्या करेगा? इसका घर ही तबाह हो जाएगा। सकीना फूफो ने इतनी चालाकी से ये सब बातें अदनान की अम्मी के दिल में डाल दी कि वो खौफजदा हो गई। अपने बेटे की जिंदगी के खौफ से उन्होंने बिना सोचे समझे अरीबा के घर रिश्ता खत्म करने की बात कर दी। अरशद साहिब और इनके खानदान अदनान की अम्मी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए। एक तरफ से सकीना फूफो ने अरीबा के रिश्ता ख़त्म करने की बात की और साथ ही फौजिया की किस्मत भी चमक उठी। एक बहुत अमीर और शानदार खानदान से इसका रिश्ता आया। वो लोग शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ और बड़े लोग थे। सकीना फूफो और फौजिया दोनों खुश हो गए। उन्होंने बगैर किसी देर के हाँ कर दी और देखते ही देखते बहुत शानदार और धूमधाम के साथ फौजिया की शादी इस बड़े खानदान में हो गई। फौजिया और सकीना इस शादी से खुशी से नहाल थे और अरीबा के खानदान को नीचा दिखाने का इन्हें एक और मौका मिल गया था। मगर इन्हें क्या पता था कि बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सकीना का गुरूर भी इतना ही बढ़ गया था। अब वो खुद पर काबू नहीं पा सकती थी। इनका दिमाग घूम रहा था। पैराशूट लगाकर आसमान में उड़ने लगी। वो जानबूझकर अरीबा के घर आई और सबके सामने बड़े ही गुरूर और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, देखा मेरी परवरिश का नतीजा। फौजिया दिल की कितनी साफ और अच्छी है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। इतने बड़े और अमीर खानदान वाले इसकी एक झलक देखकर दीवाने हो गए। आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को इसकी नेकी और खूबसूरती का इनाम दिया है। जिन पर ऊपर वाले का करम होता है, इनके रिश्ते ऐसे ही शानदार खानदानों में होते हैं। उन लोगों की तरह नहीं जिनका रिश्ता होकर टूट जाए और लोग कहें कि इन पर जिन्नात का साया है। सकीना फूफो की ये जहरीली बातें सुनकर अरीबा की अम्मी और अब्बू का दिल टूट गया। मगर नानी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो नानी ही थी। वो जानती थी कि खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, इनका अपना अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अभी घर वाले इन्हीं सब मिसाल से लड़ रहे थे कि इसी दौरान अरीबा की छोटी बहन निदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। निदा देखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी और जो भी इसे देखता इसकी सादगी और खूबसूरती का दीवाना हो जाता। मगर इसके रिश्ता आते ही अम्मी और अब्बा खुश होने के बजाय ज़्यादा परेशान हो गए। अरशद साहिब और इनकी बेगम के दिल पर एक नया बोझ गिर गया। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि अभी तक बड़ी बेटी अरीबा का रिश्ता तय नहीं हुआ था। इस पर झूठे इल्ज़ामात लगे हुए थे। ऐसी सूरत में छोटी बहन का रिश्ता पहले आ जाना किसी भी माँ बाप के लिए एक इम्तहान से कम नहीं होता। इन्हें डर था अगर निदा की शादी पहले कर दी गई तो लोग अरीबा के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देंगे। सकीना को तो जैसे एक और जहर के उगलने का मौका मिल जाएगा। जब सकीना को यह खबर मिली कि अरीबा को छोड़कर इसकी छोटी बहन निदा के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो एक बार फिर अरशद साहब के घर आई और तंजिया लहजे में बोली, मैं तो पहले ही कह चुकी थी ना, लोग समझते हैं कि चाहे निदा अरीबा से छोटी है मगर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई कमी नहीं। छोटी बेटी नसीब वाली निकली, पर बड़ी का क्या होगा? इसके सर से जन्नत का साया उतरेगा तब जाके कोई इसकी तरफ देखेगा। घर में परेशानी का माहौल था। अम्मी अब्बू परेशान खड़े थे मगर नानी अब भी बिल्कुल खामोश थी। नानी जानती थी कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और जल्द ही कोई ऐसा वाक़या होने वाला है जो सबके मुंह बंद कर देगा। घर में परेशानी और खामोशी का माहौल था। यह माहौल देखकर अरीबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जानती थी इसके माँ बाप इसकी वजह से कितने बड़े गम और दुख से गुजर रहे हैं। अपने माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए अरीबा खुद इनके पास आई। बहुत मोहब्बत और समझदारी से इन्हें समझाने लगी। अरीबा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर कहा, मामा आप और अब्बू निदा को रिश्ते के लिए लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी वजह से इस रिश्ते को मत ठुकराएं। निदा देखने में कितनी खूबसूरत है और इसके लिए इतना अच्छा घराना से रिश्ता आना तो बहुत खुशी की बात है। आप इसको पक्का कर दें। मेरी खुशी तो यही है कि मेरी छोटी बहन अपने घर की हो जाए। अरशद साहिब अपनी बड़ी बेटी की ये बातें सुनी तो इनकी आंखें आंसुओं से भर गई। मगर अरीबा ने इन्हें हौसला देते हुए कहा, अब्बा अगर आप लोग मेरे रिश्ते के इंतजार में बैठे रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। जितनी मेरी उम्र बढ़ रही है, कल को निदा की भी उम्र बढ़ जाएगी, फिर इसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी किस्मत की वजह से मेरी छोटी बहन की ज़िंदगी मुतासिर हो। आप लोग बगैर सोचे समझे निदा की
शादी की तैयारियां शुरू करें, अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर करेगा। अरीबा की ये समझदारी और कुर्बानी देखकर नानी ने इसे गले लगा लिया। नानी का दिल अंदर ही अंदर कह रहा था कि जो बच्ची अपने खानदान के लिए इतना साफ दिल रखती है, अल्लाह ताला इसकी जोली हुस्न से ज़रूर भर देगा। नीदा की शानदार शादी के बाद जहां घर में खामोशी छा गई, वहीं सकीना फुफो ने अपनी नफरत कम नहीं की। उन्होंने पूरे गुजरात में अरीबा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर इसके रिश्ते आना बंद करवा दिए। फुफो के इस जहरीले रवैये के सामने जब सब बेबसी का शिकार हो गए तो नानी ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने बगैर किसी बहस के अरीबा का सामान पैक किया और इसे हराम माहौल से दूर ले जाने का इरादा किया। अब्बू अम्मी को समझाकर नानी अरीबा को लेकर सीधा इसके मामू मामी के घर आ गई। इसके यहाँ की खुली फिजा और मामी के घर का पुरस्कून माहौल अरीबा पर दवा का काम किया। इसके चेहरे की चमक आहिस्ता वापस आने लगी। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि मामी के जरिए अरीबा के लिए एक शानदार रिश्ता आया। वो लोग समझदार थे, पहली नज़र में अरीबा की सादगी और शराफत के दीवाने हो गए। सबके लिए खुशी की बात यह थी कि लड़का कोई आम नहीं बल्कि शहर का बाइज्जत प्रोफेसर था। यहाँ पहुँचते ही जैसे अरीबा की किस्मत का बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। प्रोफेसर साहब की अम्मी ने पहले अपने चारों बेटों की शादी धूमधाम से कर दी। अब बारी इनके इकलौते बेटे की थी। इन्हें अरीबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। बात पक्की होते ही सिर्फ 15 दिनों में सारी तैयारी मुकम्मल करके अरीबा की शादी शानदार तरीके से प्रोफेसर साहिब से हो गई। जो लोग तंज करते थे अरीबा घर बैठी रहेगी, इनके मुंह पर किस्मत का ये सबसे बड़ा तमांचा था। शादी के बाद अरीबा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। प्रोफेसर साहिब बहुत होश मिजाज और घूमने फिरने का शौकीन रखते थे। शादी के अगले ही दिन अरीबा को लेकर खूबसूरत जगहों पर निकल गए। जो अरीबा पिछले 2 सालों से दुख और तंज के अंधेरे में कैद थी, वो अब खुली फिजा में हंसी खुशी वक्त गुजार रही थी। इसके सारे पुराने जख्म हमेशा के लिए मिट चुके थे। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि सकीना की बेटी फौजिया की तलाक हो गई है। फौजिया अपनी चालाकियों और मकारियों से अपनी देवरानी जेठानी और नंदों को बहुत ज़्यादा तंग करती थी, जिसकी वजह से तंग आकर इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली फुप्पो और इनकी बेटी पर अब बुरा वक्त आ चुका था। तलाक के बाद फौजिया की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कई बीमारियों में मुब्तला हो गई थी। अब मुश्किल वक्त में सकीना फुप्पो को खुद किसी के सहारे की ज़रूरत थी, मगर इन्हें अपनी जवान बेटी फौजिया का सहारा बनना पड़ रहा था। फुप्पो चल फिर नहीं सकती थी, फिर भी हिम्मत करके अपनी बेटी का ख्याल रखती। आज पूरे 5 साल गुजर गए थे, मगर फौजिया बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। वो अब शदीद बीमारी की हालत में पछतावे के आंसू बहाते हुए दम तोड़ रही थी। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों का अंजाम इतना ही बुरा और दर्दनाक होता है। अल्लाह ताला का निज़ाम बिल्कुल सच्चा है। जो लोग दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी को तकलीफ़ में डाल देते हैं, इनका जी लेना हराम कर देते हैं, अल्लाह ताला इनकी मौत भी आसान नहीं फरमाता। सकीना और फौजिया ने जैसा बोया वैसा ही काटा। दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने वालों का ये दर्दनाक अंजाम देखकर सबको समझ आ गया था कि बुरी नीयत का अंजाम हमेशा बुरा ही रहता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? और अपनी फुप्पो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसकी फुप्पो सकीना फुप्पो जैसी है और किसकी फुप्पो अच्छी है। अल्लाह हाफिज़।